हेलो। कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर विनोद कुमार बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। टुडे we will study the wonderful fairy tale Animal Farm written by George Orwell. First of all, we will go through the introduction of the fairy tale, but before to start fairy tale, I would like to give a small information about George Orwell. George Orwell was born on 25th June 1903 and died on 21st January 1950. The real name of George Orwell was Eric Arthur Blair, but he is mainly known by his pen name George Orwell. George Orwell, as I told you, was born on 1903 in India near Motihari, Bengal Presidency under British India. He died on 21st January 1950 at the age of 46. University College Hospital, London, England. After his father's retirement, Eric and his family moved back to England. George Orwell, the great English novelist, essayist, journalist, and critic. His characters, his works is characterized by lucid prose, biting social criticism, opposition in totalitarianism, and outspoken support of democratic socialism. As a writer, George Orwell produced a literary criticism and poetry, fiction, and polemical journalism. And he is best known for his allegorical novel that was written in 1945, The Animal Farm, and the dystopian novel 1984 that was written in 1949. His non-fiction works including The Road to Vegan Pure 1937 documenting his experience of work class life in the north of England and Homage to Catalonia in 1938, an account of his experience of solidifying the Republican fiction of Spanish Civil War. So, George Orwell works remain influencing in the popular culture and political culture, and the adjectives Orwell describing totalitarianism, authoritarian social practice is a part of English language. George Orwell's notable works, as I told you, are one of them is Animal Farm, then 1984, and Homage to Catalina, down to down and out of Paris and London. And he got married to Elena O'Shaughnessy in 1936 and she died in 1945. After that, he got another marry with Sonia Brunel in 1949. George Orwell, as he moved back to his nation, England, he was sent to boarding school at the age of 8 to prepare for Eton and exclusively prep school. Because he had a scholarship, he was teased and humiliated frequently. At 18, he passed the Empire Civil Service exam and became a police officer in Burma.
Burma was added the province of India after British conquest in 1885 but broke away in 1936. Orwell was there in 1922 as a police officer. At that time, as I told you, India's province was Burma. तो इस तरीके से इन द एज ऑफ 18 के अंदर ही जॉर्ज ऑरवेल ने बर्मा पुलिस के अंदर एक पुलिस ऑफिसर के रूप में नौकरी पाली थी. Orwell wrote the famous essay about his experiences in Burma, shooting an elephant. Orwell clearly states his displeasure with colonial British. He was not happy over there. I had already made up my mind and imperialism was एन ईवल थिंग. उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया इस बात को कि इम्पेरियलिज्म जो है बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी, बुरी चीज़ थी. आई वॉज ऑल फॉर बर्मीज एंड ऑल अगेंस्ट देयर ऑपरेसर्स द ब्रिटिशर्स. ही अगेन रिटर्न इन यूरोप इन 1927. When he returned, he chose to live in poverty. क्योंकि जब आदमी एक बार जिस चीज़ को नज़दीकी से देख लेता है तो उसके बाद उसका विश्वास उस चीज़ से उठ जाता है. और ठीक ऐसा ही जॉर्ज ऑरवेल ने किया. जैसा कि वो 1927 में रिटर्न टू हिज नेशन हुए, उसके बाद उन्होंने पॉवर्टी में जीना सीखा. बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी फॉर द जॉब ही हैड डन इन बर्मा. क्योंकि उसको जो जॉब की उसने बर्मा के अंदर, वो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. फॉर हैविंग बीन अ पार्ट ऑफ ऑपरेसिव गवर्नमेंट, कि किस तरीके से एक दमनकारी जो सरकार का वो पार्ट रहा और किस तरीके से एक जो भोले भाले पीपल्स को वहाँ पर जा कर के उन्होंने सताया, तो वो उसके जहन में पूरी तरीके से डूबा हुआ था. ही वॉज, or to say he saw poverty as a way to understand the problem of the oppressed and helpless by becoming one of them. किस तरीके से उसने गरीबी को सीखा और किस तरीके से उस परेशानियों को, मतलब गरीबी को सीखा, समझा, और उनकी परेशानियां किस तरीके से, जो दलित शोषित कुंचित वर्ग के लोग थे वो किस तरीके से हेल्पलेस हुआ करते थे, और उन्हीं में से वो एक बन करके उसने उस जीवन को जिया. ऑरवेल बेसिक नेचर वाज एज ए सोशलिस्ट. वो सोशलिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे. सोशलिस्ट, someone who believes that the government should own business so that everyone will be equal. तो जॉर्ज ऑरवेल का विश्वास था कि सब हम एक समान हैं और हमको एक समान जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. सो जॉर्ज ऑरवेल्स का जो एक एक जो प्ले है द एनिमल फार्म, निश्चित रूप से एक डिपिक्शन है कि वो उनका खुद के पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है. ऑरवेल्स एनिमल्स ऑरवेल envisioned an idea, the classless society where there is rich, no rich, no poor, or to say the rich do not hold power over the oppressed. जो दबे हुए लोग हैं उनके ऊपर, या गरीब लोग हैं उनके ऊपर अपना पावर नहीं चलाए. मच ऑफ हिज वर्क इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द bastardization of socialism by fascists who use the language of socialism and manipulate and later oppressed people. सो इस तरीके से जॉर्ज ऑरवेल जो थे वो उनका बहुत क्लियर मैसेज था. द टू थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस ऑरवेल्स टू राइट एनिमल फार्म, जिन दो चीज़ों से ऑरवेल ने बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने जिसकी वजह से इस एनिमल फार्म को राइट डाउन किया, उसके पीछे पहली बात तो यह थी कि हिज हेटेड फॉर इनजस्टिस एंड पॉलिटिकल लाइंग. पहला इनजस्टिस, अन्याय, और दूसरा पॉलिटिकल लाइंग. जो जिस तरीके से एक झूठ बोला जाता था, बारी बारी से पल पल झूठ बोला जाता था, वो उसने ऑरवेल को इस कदर तक मतलब रेडी कर दिया कि जिसकी वजह से ऑरवेल ने इसको एनिमल फार्म को राइट डाउन किया. And because he desired a society in which a separate classes would
not exist and all people be equal. As I told you कि उनका सोशलिज्म समाजवाद में तो पूर्ण विश्वास था ही, और वो चाहते थे कि कोई ऐसा समाज बने, मतलब हमारे देश के अंदर एक ऐसा सोसाइटी रहे जहाँ पर सब समान हो, ऐसा नहीं हो, ऐसी कास्ट नहीं हो जहाँ पर कुछ एक डिफ्रेंसिएशंस हो, वो सबको एक समान एक नज़रिए से देखना चाहते थे। इस तरीके से जो जॉर्ज ऑरवेल थे उनकी एक अपनी नज़रिया था। Shortly after writing Animal Farm, Orwell completed, as I told you, 1984, that he uh, completed in 1949, probably his most famous novel. He passed away less than a year later in January 1950. So, George Orwell is one of the greatest poet, novelist, historian, and whatever you call. The present play, Animal Farm, is a fable, एक छोटी कहानी है, कहानी के रूप में है, that is basically meant for or written for children's, बच्चों के लिए लिखी गई है, and there is some sort of to say it is an allegorical play. अब एलेगरिकल प्लेज क्या होते हैं तो उसको मैं डिफाइन यहाँ पर मैं करना चाहूँगा कि फेबल्स आर स्टोरीज इंटेंडेड टू एनफोर्स ए यूजफुल ट्रूथ। फेबल्स ज़्यादातर जो यूजफुल ट्रूथ्स हैं उनको लेकर के, उनको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। दे टीच ए मोरल लेसन, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मैसेज होता है जो वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। एलेगरीज हैव एटलीस्ट टू लेवल ऑफ मीनिंग, जबकि एलेगरी के अंदर दो लेवल के मीनिंग होते हैं। ऑन द सरफेस द नॉवेल इज़ अबाउट एनिमल, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सरफेस के रूप में अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से ये एनिमल्स को डील करता है। बट एट द सेकेंड लेवल एनिमल स्टैंड फॉर द टाइप ऑफ पीपल और आइडियाज़, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो एनिमल्स जो हैं किसी दूसरे के रूप में खड़े हुए नज़र आएंगे, यानी कि विचार और व्यक्तियों के रूप में खड़े हुए वो नज़र आएंगे। द वे द एनिमल्स इंटरेक्ट एंड द वे द प्लॉट अनफोल्ड, किस तरीके से जो जानवर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और प्ले किस तरीके से ओपन होता है, खुलता है, सेज समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ पीपल, जो कि आदमियों की नेचर के बारे में कुछ चीज़ों को डिस्क्लोज करता है, और द वैल्यूज ऑफ आइडियाज़, और किस तरीके से उनके आइडियाज़ की वैल्यूज को क्लैरिफाई करता है। एनी टाइप ऑफ फिक्शन दैट हैज़ मल्टीपल लेवल ऑफ मीनिंग, कोई भी एक ऐसा प्ले जिसमें विभिन्न लेवल होते हैं, कई सारे लेवल होते हैं और उनका कई प्रकार से अर्थ निकलता है। इन दिस वे अगर हम इसको कहें तो ये एक एलेगरी कहलाती है। सो टू से a fiction or any type of fiction that has multiple level of meaning, in this way it is called an allegory. allegory के दो अर्थ होते हैं, वन एट ग्राउंड लेवल पर कुछ अर्थ अलग अर्थ होता है, और अगर उसका सेकंड लेवल पर देखा जाए तो डिफरेंट अर्थ नज़र में आएगा। नो डाउट एनिमल फार्म इज a satire as well, squint satire as well, a composition making fun of something usually political, किसी एक ऐसा कंपोजिशन जो कि पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स के ऊपर फन के रूप में लिखा गया है। एनिमल फार्म मेक्स फन ऑफ द पॉलिटिकल सोसाइटी आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जो रूस की रशियन बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई, उसको ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके का यहाँ पर चित्रण रिप्रेजेंट किया है। अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखें तो जो ये रशियन सोसाइटी है, इन द अर्ली 20th सेंचुरी द टू social classes, as I told you, tiny minority, the bourgeoisie controlled the country's wealth, and the working class was called the protestarian. तो दिस इज़ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जहाँ पर एक रूल करता है तो दूसरा वर्किंग क्लास है। अगर हम कम्युनिज्म की बात करें तो कम्युनिज्म जो रसिया के अंदर अराइज हुआ, कब, जबकि
द नेशंस वर्कर्स एंड द पीजेंट्स रिबेल, जबकि देश के कामगारों ने और किसानों ने एक विद्रोह खड़ा कर दिया अगेंस्ट द ओवरवेल्म एंड द वेल्दी पावरफुल क्लास, जो बहुत शक्तिशाली, पावरफुल और धनवान जो क्लास थी उसके खिलाफ। कैपिटल एंड एरिस्टोक्रेट्स, जो कि बहुत पूंजीपति थे और बहुत मतलब जो कि राजाशाही लोग थे, उनके खिलाफ उन्होंने जो एक विद्रोह किया आम जनता ने, वर्कर्स ने और किसानों ने, तब जा कर के ये कम्युनिज्म रसिया के अंदर आता है। दिस वॉज बेस्ड ऑन कार्ल मार्क्स एंड हिज वर्क, और ये पूरी तरीके से जो कम्युनिज्म था कार्ल मार्क्स और कहा जाए कि उसके वर्क्स के ऊपर आधारित था। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग था, अगर हम उसको कहें तो ऑल स्टैंड इक्वल, नो वन इज स्पेशल फॉर देम। सो द कॉल फॉर द एक्शन वाज क्या था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, कि सारे विश्व के कामगारों एक हो जाओ। अगर आप एक होगे तो आपकी आवाज़ में दम होगा, और दम होगा तो हर सरकार आपकी बात मानेगी, कोई भी आपका अत्याचार नहीं कर सकता। आप जितना काम किया है उसके बदले में आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। सिमिलरली इन एनिमल फार्म ओल्ड मेजर कॉल फॉर द रेबेलियन, ठीक उसी तरीके से ओल्ड मेजर ने जो है एनिमल फार्म के अंदर रेबेलियन कॉल किया है। अगर हम बात करें तो जो मिस्टर जॉन्स हैं, ही स्टैंड फॉर टिजार्स निकोलस द सेकेंड, द मोनार्क ऑफ रशिया, जो कि रशिया का मोनार्क था, वाज फोर्स टू एब्डिकेट द थ्रोन। जिस तरीके से मिस्टर जोन्स को एनिमल फार्म को छोड़ करके भागना पड़ा, ठीक उसी तरीके से टिजार जो निकोलस सेकेंड थे, जो कि मोनार्क ऑफ रशिया थे, उनको भी मजबूर होना पड़ा कि उनको राजाशाही को त्यागना पड़ा। उसके बाद लेनिन अ रशियन रिवोल्यूशनरी टुक पावर, और फिर उसके बाद में लेनिन जो थे वो बहुत शक्तिशाली रिवोल्यूशनरी के रूप में निकल करके आए, जिन्होंने कि पूरे पावर को अपने अंदर होल्ड कर दिया इन द नेम ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, और उसका नाम जो दिया उन्होंने वो समाजवादी पार्टी के रूप में दिया। सो व्हेन लेनिन डाइड, और जैसे ही लेनिन की मौत हो जाती है उसके बाद में जोसेफ स्टालिन एंड लियोन ट्रॉट्स्की जो है वो कम्प्लीटली उसको कंट्रोल कर लेते हैं सोवियत यूनियन को। और फिर उसके बाद की कहानी जो है हमारे यहाँ पर है, किस तरीके से नेपोलियन और स्नोबॉल, नेपोलियन स्टैंड्स फॉर जोसेफ स्टालिन एंड ट्रॉट्स्की स्टैंड्स फॉर स्नोबॉल, किस तरीके से नेपोलियन के द्वारा स्नोबॉल को एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी स्टालिन के द्वारा लियोन ट्रॉट्स्की को एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। तो स्टालिन बेनिस्ड ट्रॉट्स्की एंड टुक हिज कंट्रोल, कि जिस तरीके से स्टालिन ने ट्रॉट्स्की को बेदखल कर दिया, वहाँ से भगा दिया, उसको निकाल दिया, बेनिस्ट कर दिया, उसके बाद में पूरा जो कंट्रोल था हैं अपने हाथ में ले लिया। ही बिगेन हिज ब्रूटल किलिंग्स, और फिर उसके बाद में जो स्टालिन थे उसने जिस तरीके से रशिया के अंदर ब्रूटल किलिंग्स शुरू कर दिया था, एंड इट इज़ सेड दैट कि ओवरसीइंग द डेथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन सोवियत सिटीजन्स को उसने मौत के घाट उतारा। ठीक इसी तरीके से हमारे यहाँ पर एनिमल फार्म में हम देखेंगे कि लेटर स्टेज में जा कर के जो जैसे ही स्नोबॉल को एक्सपेल्ड किया जाता है, और जब स्नोबॉल को ये घोषित कर दिया जाता है कि वही हमारी विंड मिल को गिराने वाला है, वही देशद्रोही है, तो फिर उसके बाद में जो एक मीटिंग कॉल की जाती है नेपोलियन के द्वारा, एंड ही प्रोक्लेम्स दैट कि जिन जिन लोगों ने स्नोबॉल का साथ दिया वो यहाँ आ जाएं, और जैसे ही एक एक करके जानवर निकल करके आते हैं उनको ब्रूटल डॉग्स के द्वारा उनको स्लैटर कर दिया जाता है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी स्टालिन के द्वारा ऑलमोस्ट इट इज़ सेड दैट 20 मिलियन सोवियत सिटीजन्स को डेथ के कगार पर उतार दिया जाता है। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो एनिमल फार्म के अंदर जो थीम है वो 3 मेजर लीड्स को लेकर के चलती है। द थीम इज़ फॉर फ्रीडम एंड इंडिविजुअल डिग्निटी,
मस्ट बी गार्डेड वेरी केयरफुली। यहाँ पर जो थीम है उसको तीन तरीके से लेके चल रहे हैं कि जो आज़ादी मिलनी चाहिए और इंडिविजुअल डिग्निटी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इट मस्ट बी गार्डेड वेरी केयरफुली। The second theme that can be or here is people can be dominated by other using their strength, fear and trickiness, कि जो लोग पावर्स को मतलब मेन सत्तात्मक होना चाहिए भाई, जो किस तरीके से अपना ताकत को यूज करते हैं, एक भय का वातावरण पैदा करते हैं और ट्रिकी तरीके से सत्ता को हथिया लेते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो नेपोलियन हैं वो करते हैं। एंड द थर्ड वन इज पावर करप्ट। दिस इज एन आयरनी। पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, कि पावर हमेशा करप्टेड होता है। जब व्यक्ति के पास पावर आ जाता है तो वो करप्ट, मतलब ऑलवेज पावर करप्टेड होता है। और एब्सोल्यूट पावर जब आपके हाथ में आ जाता है तो वो सबको एब्सोल्यूटली करप्ट कर देता है। द फोर्थ थीम इट विच कैन बी लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत क्लियर किसी हिंदी के पोइट ने भी कहा है, जहाँ ना पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि। तो ये तो बहुत क्लियर है कि जो लैंग्वेज है वो बहुत पावरफुल टूल होता है। यूज improperly it can be enslave and confuse us, ये कभी कभार हमको गुलाम बना लेती है तो कभी कभार कंफ्यूज भी कर देती है। सो एनिमल फार्म इज रिटन ऑन मैनी लेवल्स। इट इज ऑलरेडी अ चिल्ड्रंस स्टोरी इन its own right. It also a lament for the fate of the revelation and the hope contains in them. It is a moving comment on man's constant compromise with the truth। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो जॉर्ज ऑरवेल है उन्होंने ये बच्चों के लिए एक फेरी टेल लिखी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तय मान के चलिएगा कि जो ये एक दुखद मैसेज है उन रेवोल्यूशनरीज के लिए जो बाद में जाके देखते हैं कि उन्होंने जब विद्रोह किया तब तो उन्होंने ये कि बस अपना कम्युनिज्म आएगा, लेकिन बाद में जाके पता लगा कि अपनों में से ही कुछ एक शासक बन जाते हैं और किस तरीके से वो जो है पूरी तरीके से और ज़्यादा दुखदायी साबित होते हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हाँ ठीक है, देर है अंधेर नहीं है, बट वन डे जो है वो एक उजाले का होगा और निश्चित रूप से वो उजाला आने वाला है। So George Orwell tried his hand at writing of stories and novels. His books are chiefly meant for the children, as I told you. He writes in a delightful manner on a variety of the subject. His aim is strike out and gushing freshness and interest. He takes up a trivial subject, छोटे छोटे सब्जेक्टों को लेते हैं एंड लैंड्स इट अ पिक्यूलियर चार्म, और उसको जो चार्म है उसके हाइट्स तक लेके चले जाते हैं। हिज मैनर ऑफ टैकलिंग द सब्जेक्ट इज डायरेक्ट, बहुत सुंदर तरीके से डिटेक्ट करते हैं मैटर को। ही गोज स्ट्रेट टू द सब्जेक्ट मैटर एंड डज नॉट लेट्स अस इन द टू से लेब्रेथियंस, मतलब बहुत क्लियर तरीके से चीज़ों को क्लियर करते हैं। हिज चीप क्वालिटी इज ह्यूमर, एज आई टोल्ड यू। इट इज़ नॉट लाइट बट सोबर, हल्कापन नहीं होता बट एक अच्छा होता है। द अंडर करंट द सटायर इज फाउंड इन ऑल हिज राइटिंग्स। इन दिस लाइज his special charm. It makes a special appeal to the children of school going age. They love to read this book. His premature death, as I told you, in 1950 deprived the English literature of the powerful talent which had shown a particular affinity of to say with satire. Animal Farm is burlesque as well, as I told you. It's a to say it's a satire, it is an allegorical play, it is a burlesque which poked fun on the political parties and through means, some of which were rather cheap. The 1949 84 that was written in 1949 is a blood curdling anticipation of what the condition might be of England under the
कम्युनिस्ट रूल कि किस तरीके से 1984 में जो है कम्युनिस्ट के अंडर में अगर रहा इंग्लैंड तो उसका क्या हालात होगा, उसका बहुत क्लियर उन्होंने उदाहरण एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट किया है. द नाइट मैरिज क्रीमा एंड द सॉलिडरिटी ऑफ द पिक्चर लीव्स द unforgettable impression over the mind of the readers who cannot help the discrediting its sheer possibility. I would like to conclude this introduction with this note. I would like to finish to conclude my um, lesson. Hope you understand it better. Uh, Thank you very much. Have a nice day.